اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور پیچھے چھوڑ جائیں اپنی بیویاں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تو وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہیں صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 234 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ الحمدللہ علی ذالک 233 آیات بینات سورۃ البقرہ کی ہم جامعہ مسجد حنفیہ کے درس میں بالاستیعاب سبقاً پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ قائم و دائم رکھیں اور اللہ کرے کہ اللہ کی رحمت سے ہم اسی طرح جڑے رہیں اور والناس تک قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، معاملہ ہے ہمارے مانگنے کا۔ اگر ہمارے مانگنے میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ تعالی میرے رب کی جانب سے خوبصورت فیصلے ہوں گے، اور اگر ہمارے مانگنے میں کمی ہوگی یا خدا نخواستہ ہمارے دلوں کی نیت میں کوئی فطور آ گیا تو پھر میرے بھائیو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور اس کام میں بھی کوئی برکت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کا دین نہ کسی شخصیت کا محتاج ہے، نہ کسی ذات پات کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی عالی شان مسجد یا جگہ کا محتاج ہے۔ اللہ کا دین اخلاص سے اگر پھیلایا جائے، پہاڑ کی چوٹی پر بھی بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اٹھنے والی آواز پوری دنیا میں میرا رب پہنچا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو جبل ابی قبیس، جو حجاج حضرات ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابی قبیس بڑا مشہور پہاڑ ہے، اس پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا۔ سورہ حج کے اندر تذکرہ موجود ہے
تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اخلاص بری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ ایک جمع غفیر لشکروں کے لشکر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور طواف کے لیے اور حج کے لیے تشریف لانے لگے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کرے کہ ہمارے اخلاص میں کوئی کمی نہ آئے، اللہ ہمیں شیطان کے وساوس اور حملوں سے محفوظ فرمائے رکھیں۔ کانوں کا کچا کبھی مت بننا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ شیطان جو ہے نا، سب سے پہلے انسان کے بہت قریبی دوستوں کو استعمال کرتا ہے، جن پر بہت اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط بیانی نہیں کر سکتے یا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ شیطان سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو قریب کرتا ہے، اور قریبی دوست کان میں بات ڈال دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں یوں انسان کو دین سے شیطان متنفر کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے معاملہ میں، درس قرآن کے معاملہ میں، یاد رکھیے یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری کتنی سانسیں باقی ہیں، میری تو یہ دعائیں ہیں کہ اللہ کرے میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسی طرح گلی گلی، محلہ محلہ، قریہ قریہ، مسجد مسجد میں قرآن کا درس دینے والے علماء تیار ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ آواز چار سو لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کے درس کے متعلق کبھی بھی بدگمان نہ ہونا۔ خدا کا قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے، اور ہدایت کا میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، اور ہدایت کے حصول کے معاملہ میں انشاءاللہ ہم کبھی کانوں کے کچے نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، کوئی کچھ کہتا رہے، بھائی ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی الگ قبر ہوگی، حساب دے دے گا وہ، لیکن اس وقت ہم محتاج ہیں کہ اللہ کرے ہماری قبر حشر سنور جائے۔ دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہی میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کے لیے اس چھوٹی سی آواز کی خاطر، یہ جو چھوٹی سی آواز ہے جو آج اس چھت سے لگ رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر دنیا کے نشیب و فراز میں پہنچا دے۔ ہاں، اللہ کرے کہ ہمیں وہ ہدایت ملے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اللہ کرے ہمیں وہ قرآن کا نور نصیب ہو جائے جو میرے رب نے کما حقہ آسمانوں سے نازل کیا تھا۔ تو بہر صورت الحمدللہ علی ذالک، جو ساتھی جڑے رہے سورہ بقرہ کی 233 آیات کے پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ ان کا جڑنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ آپ کوشش تو یوں فرما لیں کہ یہاں چونکہ 8:15 نماز فی الحال چل رہی ہے، تو ساتھی اگر کوشش فرما لیں کہ یہی نماز ادا کر لیں عبداللہ مسجد میں، تو یہاں آسانی سے ہم بر وقت انشاءاللہ درس شروع کر دیں گے۔ نہیں تو اگر دوسری مساجد سے بھی پڑھ کے آتے ہیں تو اہتمام سے بر وقت پہنچنے کی بہرحال کوشش کی جائے۔ کیوں کہ بات جب تک شروع سے نہیں سنی جائے گی تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور قرآن مجید کا یہ تفسیری رنگ ہے میرے بھائی، یہ تفسیری، یہ ترغیبی رنگ نہیں ہے، یہ تفسیری رنگ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس میں کیا ہے، فضائل بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، احکامات بھی آئیں گے، اور ان کو سیکھنا پوری دل لگی، دل جمی اور توجہ سے بہت ضروری ہے۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عرض کیا ہے کہ سورۃ البقرہ، لفظ بقرہ اس کا معنی ہے گائے، بقرہ گائے والی سورت۔ چونکہ اس سورت کے اندر یہودیوں کے عقائد و نظریات کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے، ان کے عقائد کا رد کیا گیا ہے، ان کے عقائد کفریہ تھے اور بے راہروی کا شکار تھے، اور بالخصوص وہ گائے کے پجاری تھے، گو ماتا کے پجاری۔ یہود اور ہنود، ہندو اور یہودی، ان کے نظریات آپس میں ایک ہیں، وہ بھی گو ماتا والے اور یہ بھی گو ماتا والے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر یہودیوں کے عقائد کا رد فرمایا۔ وہ گائے کے پجاری تھے اور انہیں بطور خاص حکم ہوا کہ تم گائے کی قربانی کرو، گائے کو ذبح کرو۔ کیوں کہ لازمی بات ہے کہ جب گائے کی عقیدت ان کے دلوں میں موجود ہے اور اپنے ہاتھ سے جب اس کے گلے پہ چھری چلائیں گے تو یہ گلے پہ چھری نہیں چلے گی، دل میں ان کے نظریات پہ چھری چلے گی، تو اس لیے حکم ہوا کہ گائے ذبح کی جائے۔
تو اس सूरत को बकरा इसलिए कहा कि इस सूरत के अंदर यहूदियों के कुफरिया अकायद का रद्द किया गया है। उसके बाद इसके अंदर 4 बड़े बड़े अहम मसले बयान हुए हैं जो बुनियादी अकायद हैं इस्लाम के। बुनियादी नंबर 1 अल्लाह की तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का मसला सूरतुल बकरा में बयान हुआ है। नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबुव्वत का मसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि जो नसब की लड़ी है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके जुड़ती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर जो है ना वो तज़किरा शुरू किया आप अलैहिस्सलाम की रिसालत का कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं यूं मेरे दीन की खातिर कुर्बानियां दी, फिर मैं अल्लाह ने उनको वक्त का इमाम और पेशवा बनाया, क़यामत तक आने वाले लोग उनको अपना पेशवा मानेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने मुबारक हाथों से अपने लख्ते जिगर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बैतुल्लाह की तामीर की थी। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, ये पूरे तज़किरे चले। तो बैतुल्लाह जैसी मस्जिद जनाब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमा दी। तो आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बाप बेटे अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब जिस नेकी की तूने हमें तौफीक नसीब फरमाई, मेरे अल्लाह इसको हमारी जानिब से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। दूसरी दुआ आगे ये करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, तफसीली दुआ है दूसरे पारे के पहले पारे के आखिर के अंदर, या इलाहल आलमीन हमने तेरी मुबारक मस्जिद बना दी है, इसको आबाद करने वाला इमाम भी भेज दे और खतीब भी भेज दे। वो कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की दुआएं जनाब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मांगी हैं। फिर इसके बाद आगे आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के तफसीली हालात आए। फिर आगे चले तो मेरे भाई सूरत का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकन पढ़ाए हैं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो दूसरे हिस्से के अंदर फिर 2 मसले फरमाया। पहले दोनों मसले बहुत अहम हैं, तौहीद भी और रिसालत आप अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत भी। इन दोनों मसाइल की चौकीदारी तुम पर लाजिम है, पहरेदारी तुम पर लाजिम है। वो कैसे होगी? फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार रहो। कुफार तुम्हारे नजरियात पे हमला आवर होंगे। सूरह बकरा का दूसरा हिस्सा तफसीलन क़िताल फी सबीलिल्लाह, लेकिन क़िताल और जिहाद फरमाया ये सिर्फ असले से तो थोड़ी होता है, इसके लिए तो इस्तेहकाम जरूरी है, माली इस्तेहकाम जरूरी है। इसलिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह फरमाया अल्लाह के रास्ते में जहां जान की कुर्बानी देनी है वहां माल की भी कुर्बानी देनी है। ये साथी आगे तशरीफ ले आए, जितना मुमकिन हो सके आगे आगे और जोड़। ये आगे ये खला है जी, शहजाद भाई आगे हूँ, ये माशाल्लाह यहाँ मेरे बराबर आ जाए आप, जज़ाकुमुल्लाह, हिम्मत फरमाए। इंशाल्लाह कल से और जगह बढ़ा दी जाएगी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिल के बैठेंगे, अल्लाह की रहमत निछावर होगी इंशाल्लाह। फरिश्ते अपने नूरानी परों से ढांप रहे हैं, इस नजरिए और अकीदे से बैठे। चुनांचे ये 2 मसले। फिर उसके बाद आगे चले तो फरमाया कि क़िताल फी सबीलिल्लाह कोई आम मसला नहीं है। जब तुम कुफार के खिलाफ सीना सुपर होकर मैदान में उतरोगे तो कुफार तुम्हारे अंदर ही खलबली पैदा करेंगे, कुफार तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी सफों को तोड़ने की साजिशें करेंगे, कुफार तुम्हारे दिलों में शुबहात डालेंगे। फरमाया उन शुबहात का शिकार नहीं होना, वरना तुम आपस में जब जुदा जुदा हो गए, तुम्हारे अंदर तफरका पैदा हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया, तो फिर तुम दुश्मन का मुकाबला क्या करोगे? दुश्मन तुम्हें घर में आकर दबोच लेगा। इसलिए फरमाया तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद जरूरी है, दिलों का जोड़ा होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भाई कोई किसी पर जुल्म न करे। अगर इस्लामी रियासत हो, इस्लाम के नाम पे बनी रियासत हो और उस पर जालिम मजलूम को पीस रहा हो, उसका हक छीन रहा हो, उसके साथ जुल्म ज्यादती कर रहा हो, क्या ख्याल है इत्तेफाक पैदा हो सकता है? फरमाया इसलिए अपने मुमलिकत खुदादाद इस्लामी रियासत के अंदर इंसाफ के कवानीन का बोलबाला किया जाए। उसमें सबसे पहले किसास का मसला बयान किया कि कोई अगर किसी को जुल्मन कत्ल कर देता है, इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जालिम को बदले में क्या करें?
قتل کریں تاکہ مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور یہ آگ یہیں پہ ٹھنڈی پڑ جائے. اگر یہیں پہ قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی تم نے دشمن کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ لہٰذا اتحاد ضروری ہے. پھر آگے چلے وصیت کے مسئلے بیان ہوئے. فرمایا وصیت کا حکم بھی ایک خاص شرعی حکم ہے. اگر تم میں سے کوئی اپنے مال کے حوالے سے شرعی طریقوں کے مطابق وصیت کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، لوگوں اس کے وصیت کے اندر جو قابل عمل امور ہوں جن پر عمل کرنا شرعاً درست ہو، فرمایا ان کو پورا کرو. اگر ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی وصیت کو خامخواہ بدل دے، زیادتی کرے، وصیت کو چھپا دے، یہ بھی زیادتی والا معاملہ ہے. حقداروں تک اپنے حقوق پہنچانا لازم ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ تبھی ممکن ہے کہ جب تمہارے دلوں میں مال کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ہوگی. اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ فرمایا روزہ رکھنے کا اہتمام کرو. کیا کرو؟ یہ سارے احکامات چلے، کیونکہ روزہ دل کی پاکیزگی ہے، روزہ دلوں کی صفائی اور ستھرائی ہے. تو آگے روزے کے احکام بھی بیان ہوئے، فضائل بھی، مسائل بھی، یہ سارے بیان ہو چکے دوسرے پارہ کے اندر. پھر ہم آگے چلے، چاند دیکھنے کے شرعی احکامات آئے. پھر اس کے بعد آگے چلے، حج کے مسائل بیان ہوئے. فرمایا اگر قتال فی سبیل اللہ میں کامیابیاں چاہتے ہو تو سالانہ اجتماع ہوتا ہے جو حج بیت اللہ کا، عرفات کے میدان میں جا جا کر تم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے کامیابی کی دعائیں مانگا کرو. فرمایا وہاں سارے حاجی جا کر کیا مانگے؟ اللہ سے دعائیں مانگیں. پھر آگے یہ احکامات چلتے آئے. پھر کچھ معاشرتی اور عائلی مسائل بیان ہونے لگے جن میں نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، رضا دودھ پلانے کا مسئلہ، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل اور اس کی عدت کے الگ الگ احکامات. یہ ہم کچھ مسائل پڑھ چکے اور کچھ مسائل انشاءاللہ آج کے سبق سے آگے اب ہم شروع کرنے لگے اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاص میں ڈھیروں برکات کا نزول فرماتے. میرے بھائیو، اللہ سے مانگ مانگ کے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کے دین کی محنت ہو. یاد رکھیے گا، شیطان میرا تیرا دشمن نہیں ہے، میرے تیرے دین کا دشمن ہے. میرے تیرے دین کا ذات سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایمان چھن جائے اس کے بعد وہ بندے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. ختم، قیمتی سرمایہ تو لوٹ کے لے گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اے میرے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا کر اپنے دین متین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آئیے میرے بھائیو، آج جو ہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پیچھے ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ تھا مسئلہ رضاعت، یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے شرعی احکامات. یہ تفصیل سے ہو چکے ہیں. میں مختصر عرض کروں، اس کا حکم یوں ہے کہ ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ، بچہ ہے یا بچی ہے، 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں. 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ دودھ پلانا شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. یہ شریعت نے حد بندی فرما دی ہے. 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں. اس کے احکامات گزر گئے. اب پیچھے ہم نے ایک مسئلہ طلاق کا پڑھا تھا اور طلاقی عدت کا مسئلہ پڑھا تھا. یہ بہت ضروری مسائل ہیں میرے بھائی. ہم سیکھیں گے تو گھروں میں جا کر ہم سکھائیں گے. یہ مسائل گھروں میں جا کر بیان کریں گے. مسائل شوہر کی ذمہ داری ہے کہ حلقے میں جڑے مسائل سیکھیں، اپنی اہلیہ محترمہ کو جا کر یہ مسائل سمجھائیں تاکہ وہ گھر کی بچیوں کو، دیگر خواتین کو مسائل سمجھا سکیں. یوں مسلمانوں کے گھروں میں دین آیا ہے، یاد رکھیے گا. یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. اب باپ اپنی جوان بیٹی کو تو مسائل نہیں سمجھا سکتا ہے. وہاں کیا ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے کہ مسائل سیکھیں اور پھر اپنی بچیوں کی وہ تربیت کریں. اللہ کرے ہمارے گھروں کا ایسا ہی ماحول بن جائے. طلاق کے حوالے سے کسی خاتون کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو میرے بھائیو اس کی عدت الگ الگ ہے. ایک وہ خاتون ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، اگر وہ امید سے ہیں، یعنی بچے کی ماں بننے والی ہیں، تو ان کی عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت مکمل ہو جائے گی. اگر طلاق کے 1 گھنٹہ بعد بچے کی ولادت ہو گئی ہے، عدت ختم. اور اگر طلاق کے بعد 9 مہینے تک یہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی، 9 مہینے بعد جا کر ولادت ہوئی ہے، تو یہ عدت کتنے مہینے چلے گی بھائی؟ 9 ماہ تک یہ عدت چلتی رہے گی. یہ مسئلہ ہے حاملہ خاتون کا، مطلقہ ہو یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، دونوں صورتوں میں یہی مسئلہ ہے. نمبر 2، ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، شوہر نے طلاق دے دی ہے. نکاح ہو گیا،
रुखसती नहीं हुई, शौहर ने तलाक दे दी है, शौहर से मुलाकात नहीं हुई है, तो इस पर शरन इद्दत नहीं है। लेकिन अगला मसला समझिएगा, अगर एक ऐसी खातून है कि जिसका निकाह हो चुका, बहुत अहम मसला, निकाह हो चुका, रुखसती नहीं हुई, शौहर का इंतकाल हो चुका है, ये औरत 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। मसला नहीं समझ में आया? एक खातून जिनका निकाह हो चुका है मगर शादी नहीं हुई है, रुखसती नहीं हुई है, शौहर का इंतकाल हो चुका, तो ये कितनी इद्दत गुजारेंगी? जी, इसलिए कि इनकी इद्दत में शौहर का सोग भी शामिल है, समझा कि उनका गम भी शामिल है। ये मसाइल तो आगे इंशाल्लाह आज के सबक में आने वाले हैं। एक ऐसी खातून है कि जिनको, यानी जो औरतों के साथ माहाना एक उज़र अल्लाह ताला ने लगा दिया है, हर महीने औरत को मखसूस दिन खातून एक उज़र से होती हैं, जिस खातून के ये पीरियड्स होते हैं उनके लिए मसला यह है कि अगर उनको तलाक हो जाए तो वो 3 पीरियड्स, कमोबेश 3 महीने, 3 पीरियड्स जो हैं वो इद्दत गुजारेंगी। लेकिन एक ऐसी खातून है, वो हैं तो शादीशुदा लेकिन पीरियड्स नहीं होते, किसी बीमारी की वजह से, उज़र की वजह से, या उम्र बड़ी हो चुकी है और तलाक हो चुकी है, तो ये गिन कर 3 महीने इद्दत गुजारेंगी। कितने दिन बनेंगे भाई? 90 दिन। समझ आ गई ना जी? इस तरह ये मसाइल हैं। बाकी ये है कि कुछ तो बयान हो जाते हैं। बाकी मेरे भाइयों, दीन सीखने में कोई झिझक नहीं है, याद रखना, दीन सीखने में कोई हिजाब नहीं है। एक हया इंसान को जन्नत में लेके जाए, दूसरा हया इंसान को जहन्नम में लेके जाए। वो हया जो गुनाहों से हया सिखाए, ये जन्नत का सबब है। वो हया जो दीन सीखने में आड़े आए, ये जहन्नम में ले जाने का सबब है। इसलिए हमने दीन सीखने में कभी भी शर्म और हया महसूस नहीं करनी। खुलकर मसाइल पूछें, खुलकर मसाइल पूछें, सीखेंगे तो घरों में जाकर के सिखाएंगे। आइए जनाब, आज का जो मसला है इसमें यह बात बयान हुई कि जिन खवातीन के शौहर फौत हो जाते हैं उनकी इद्दत का क्या मसला है। नंबर 1, इद्दत कहते किसको हैं? नंबर 2, इद्दत में पाबंदियां क्या क्या हैं? नंबर 3, इद्दत के दीगर तफसीली अहकाम व मसाइल जितना मेरे रब ने तौफीक नसीब फरमाई, इंशाल्लाह आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे। चुनाचे फरमाया, वल्लदीना, और वो लोग, युतवफ़ौना मिनकुम, जो फौत हो जाते हैं तुम में से, वयज़रूना अज़वाजा, और पीछे छोड़ जाते हैं अपनी बीवियां। यानी वो मर्द जो फौत हो जाएं और पीछे उनकी बेवा मौजूद हो, तो बेवा क्या करें? फरमाए, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना, वो अपने आप को रोके रखें, इंतजार में रखें, यानी इद्दत में रहें। कितना? 4 अशहुरिन व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। ये वो खवातीन हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया और ये उम्मीद से नहीं है। याद रखिएगा, जो खातून उम्मीद से हैं, उनके पेट में बच्चा है और शौहर फौत हो गया, जब बच्चा पैदा होगा इद्दत खत्म, इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब मेरे भाइयों, यहां सबसे पहले हम कुछ मसाइल समझते हैं कि इद्दत क्या है। इद्दत का मतलब है कि औरत शौहर के इंतकाल के फौरन बाद कुछ पाबंदियों में आ जाती है। पाबंदियों का नाम इद्दत है। याद रखिए, इद्दत में 3 बड़ी बड़ी पाबंदियां हैं। कितनी मेरे भाई? खूब समझ ले मसला, आसानी के लिए अर्ज कर रहा हूं। 3 बड़ी बड़ी पाबंदियां हैं। नंबर 1, ये खातून इद्दत के दौरान आगे निकाह नहीं कर सकती। अगर ये निकाह करेगी तो ये निकाह बातिल तस्वुर किया जाएगा। इद्दत के दौरान आगे निकाह करेगी तो ये निकाह बातिल तस्वुर किया जाएगा। नंबर 2, इद्दत के दौरान घर से बिला शरी उज़र के घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। यानी रिश्तेदारों के आना जाना, शादियों में आना जाना, किसी की मैयत में आना जाना, समझ आ गई है, खामखा ऐसे ही बाजार में शॉपिंग के लिए निकल जाना, ये कोई शरी उज़र नहीं है। तो बगैर किसी शरी उज़र के घर से बाहर जाना इद्दत की हालत में मुसलमान खातून के लिए जायज, ये दूसरी पाबंदी। नंबर 3, इद्दत की हालत में खवातीन, मुसलमान खवातीन बनाओ सिंगार नहीं कर सकती हैं। बनाओ सिंगार का मसला समझिए। बनाओ सिंगार क्या है? नहाना जायज है, याद रखिए, नहाना जायज है, मगर खुशबू का साबुन और शैम्पू वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल न करे। जितना नहाने में सादगी हो सके उतना सादगी का एहतमाम किया जाए।
उतना सादगी का एहतमाम किया जाए। नंबर 2, इद्दत की हालत में नहाना जायज है, लेकिन नहाना किसी मजबूरी की बुनियाद पर, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है या यह है कि सर में बीमारी लगने का खतरा है, पसीना आता है, मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, नमाज में दिल ना लगे, आमाल मुतासिर होते हैं, ऐसी सूरत में वो नहा सकती हैं। लेकिन नहाने में भी जितना मुमकिन हद तक सादगी इख्तियार की जाए वो ज्यादा बेहतर है। नंबर 2, सर में तेल डाल सकती हैं, लेकिन उस वक्त जब मजबूरी हो सर में बीमारी लगने की। लेकिन ऐसा नहीं कि रोजाना एहतिमाम से नहा भी रही हैं, एहतिमाम से जनाब बालों में तेल भी डाल रही हैं और कंघी भी। नहीं, यूं नहीं हो सकता है। जब जितना बर्दाश्त हो सके उतना बर्दाश्त करें। जब बर्दाश्त से बात बाहर होने लगे तो बकदरे जरूरत ये मामलात किए जाएं। कंघी करना, इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो है मोटे दंदानों वाली कंघी, एक है बारीक दंदानों की कंघी। मोटे दंदानों की कंघी खातून इद्दत के दौरान इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए कि मोटे दंदानों से बालों में ज़ेब ज़ीनत पैदा नहीं होती है। बारीक दंदानों से बालों में ज़ेब ज़ीनत का शायबा है, इसलिए फुक़हा किराम ने लिखा है कि बारीक दंदानों वाली कंघी इद्दत की हालत में खातून इस्तेमाल ना करे, चाहे वो इद्दत तलाक की हो, चाहे वो खुला की हो, चाहे वो शौहर के इंतकाल की हो। समझ आ गई है? इद्दत के दौरान ये तीनों पाबंदियां तमाम खवातीन पर लाजिम हैं। ऐसे ही खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, सुरमा आंखों में नहीं लगा सकती हैं, और ऐसे ही मेहंदी वगैरह नहीं लगा सकती हैं, या मजीद कोई खूबसूरती के लिए किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ज़ेब ज़ीनत में जो लिबास आए उस लिबास का इस्तेमाल भी हराम लिखा फुक़हा किराम ने। जैसे क्या है, नया लिबास, और वो क्या है कि उसमें चमक दमक हो, समझ आ गई है, और खूबसूरती उससे जाहिर हो, भड़कीले कलर्स हों जैसे, तो उनका इस्तेमाल जायज नहीं है। बिल्कुल सादा लिबास, बिल्कुल सादा लिबास, जितना उसमें सादगी हो सके उसका इस्तेमाल हो। एक खातून है, वो कहती हैं जी मेरे पास वो सारे के सारे सूट ही कीमती हैं और सारे सूट ही मेरे खूबसूरत और आला हैं, ब्रांडेड हैं, अब मैं क्या करूं? तो उलमा ने लिखा कि ये सादे लिबास का एहतमाम करें। अगर पैसे नहीं तो ये ब्रांडेड और कीमती लिबास बेचकर कोई सादा लिबास खरीदें। मसला समझ में आया जी? अब बताएं, इसमें पाबंदी सख्त है या नहीं है? खूब पाबंदी है भाई, खूब पाबंदी। और ये कुरान मजीद का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि वो पाबंदी में रहेंगी 4 महीने और 10 दिन। तो ऐसा लिबास इस्तेमाल ना हो जिससे ज़ेब ज़ीनत का इजहार होता है। ऐसा जूता भी इस्तेमाल ना करे जिससे ज़ेब ज़ीनत का इजहार होता है। और इसी तरह जेवर का इस्तेमाल भी इद्दत के दौरान हराम है, हत्ता कि कांच की चूड़ी का इस्तेमाल भी नाजायज है। इद्दत के दौरान कांच की चूड़ी का इस्तेमाल भी क्या है मेरे भाई? समझ आ गई? ये बहुत जरूरी मसाइल है मेरे भाई, हम ये सीखें, आगे सिखाएं घरों में इंशाअल्लाह ताला। अगर हम सीख के सिखाना शुरू करें इंशाअल्लाह इल्म की फिजा बनेगी। हाँ, इंशाअल्लाह इल्म की फिजा बनेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे मसला यह है कि खातून इद्दत कहां गुजारे। मैं इसकी मिसाल यह देता हूं, जहां शौहर के साथ वो रहती थीं, शौहर के घर में इद्दत गुजारना उस पर लाजिम है, वाजिब है उस पर। बाज खवातीन क्या करती हैं, कोई शरई उज़र नहीं होता, नहीं जी शौहर इंतकाल हो गए, मैं तो अपने मेके घर जा रही हूं, वहीं इद्दत गुजारूंगी। बिल्कुल नाजायज और हराम है, याद रखिए, बिल्कुल नाजायज और हराम है। हत्ता के उलमा ने यहां तक मसला लिखा फुक़हा किराम ने, एक खातून अगर शौहर उससे नाराज थे और शौहर ने नाराज होकर उनको मेके भेज रखा था, मेके घर बैठी हुई थी, और इधर शौहर का इंतकाल हो गया, जो ही उसकी बेवा को वहां से पता चले, फिल फौर अपने मेके घर से अपने शौहर के घर मुंतकिल हो जावें और यहां शौहर के घर में इद्दत गुजारें। इसलिए कि इद्दत के मसाइल में बुनियादी कानून यह है कि जो मुस्तकिल रिहायश है औरत की, वहां इद्दत गुजारी जा सकती है, आरजी रिहायश में इद्दत नहीं गुजारी जा सकती। मुस्तकिल रिहायश उसकी शौहर का घर है, मां बाप का घर, शादी के बाद मां बाप का घर मुस्तकिल नहीं होता है, तो इसलिए वो वापस फौरन चली जाए। अगर औरत कहीं सफर में है, याद रखिए कहीं खातून सफर में है, तो सफर की हालत में अगर उसे पता चला कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, जहां है जितना जरूरी काम है वहीं से फौरन वापस आ जाए।
और इद्दत के दौरान मैंने अर्ज किया कि औरत अपने घर से बाहर शरई उज़र के बिना नहीं जा सकती, हत्ता कि किसी की इयादत के लिए जाना हो तो भी जायज नहीं, किसी की शादी में जाना हो तो भी जायज नहीं, किसी की मैयत में जाना हो तो भी जायज नहीं। अगला मसला, अगर हज के सफर का इरादा कर चुकी हो और शोहर फौत हो गया, हज के लिए भी जाना जायज नहीं है। मसला अहम है या आम है भाई? याद रखिए, बहुत अहम। हज के सफर से जरूरी कोई सफर है जी? तो ये बाजार की जो शॉपिंग है, ये हज से मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है। समझ आ गई है? ईद आ गई है, ठीक है, इद्दत में हूं, लेकिन मैं जाके, हां, जो शरई उज़र है उसको समझिए। शरई उज़र क्या है? जिसमें खातून घर से बाहर जा सकती हैं, कोई उसका कमाने वाला नहीं, वो अकेली रह गई, बच्चे छोटे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। अगर वो घर से बाहर नहीं जाती हैं, उसकी मुलाजमत है, कहीं वो काम करती हैं या लोगों के घरों में काम करती हैं, वहीं से कमाकर अपना और अपने यतीम बच्चों का पेट पालती हैं, कोई भी तामुन करने वाला नहीं है, कोई उनके खर्चे उठाने वाला नहीं है, तो ये उसका शरई उज़र है। अब लाजमी बात है, फाकों में मर तो नहीं सकती ना, ये शरई उज़र है। अब ये घर से बाहर पर्दे की हालत में जाए अपने काम वाली जगह पर और काम करके शाम को घर में लौटे, इसके लिए भी शरई मसला यह है कि दिन दिन में जाकर काम कर सकती है, मगर रात इसको अपने घर में, शौहर के घर में आकर आराम करना जरूरी और लाजिम है। रात बाहर गुजारना इसके लिए जायज नहीं है। नंबर 2, उसका शरई उज़र क्या है? बीमार हो गई हैं, अब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, एडमिट होना पड़ा है, घर में इलाज मुआलजे की सहूलत इतना नहीं होती जो अस्पतालों में होती है। अगर डॉक्टर्स ये तजवीज दें कि बगैर एडमिट हुए इनका इलाज नामुमकिन है, तो ये भी शरई उज़र है, ये हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकती हैं और इनका इलाज भी वहां जायज है। अच्छा जी, यहां मैंने एक मसला अर्ज किया था कि एक ऐसी खातून जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए, उन पर इद्दत है 4 महीने और 10 दिन, लेकिन तलाक की इद्दत में और जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए इनकी इद्दत में यह फर्क है। एक ऐसी लड़की है, उनका निकाह हो चुका, रुखसती नहीं हुई और शोहर ने तलाक दे दी है, इन पर इद्दत नहीं है। लेकिन एक ऐसी लड़की, उनका निकाह हो चुका और निकाह रुखसती नहीं हुई, शोहर का इंतकाल हो चुका है, तो अब ये उसी तरह इद्दत गुजारेंगी जिस तरह शादीशुदा औरत इद्दत गुजारती है। 4 महीने और 10 दिन ये इद्दत गुजारेंगी। इद्दत तो बाहर सूरत है, लेकिन ये जो इद्दत की पाबंदियां हैं, एक ऐसी लड़की है कि वो अभी बालिगा नहीं है मगर निकाह हुआ है। जैसे बाज इलाकों में रिवाज होते हैं कि बचपन में ही निकाह कर दिए जाते हैं, निकाह हो जाते हैं, फिर बच्ची जवान हुई रुखसती हो जाती है, तो इधर निकाह हुआ, बच्ची अभी तक नाबालिगा हैं और जिससे निकाह हुआ था शौहर का इंतकाल हो गया। अब इनके लिए मसला यह है, इद्दत तो ये बच्ची भी गुजारेगी, लेकिन इस पर वो पाबंदियां नहीं है जो दूसरी खवातीन पर पाबंदियां हैं। अब ये तो बच्ची, इस पर पर्दा भी कोई नहीं है, ये तो घर से बाहर भी आती जाती है, इस पर कोई पाबंदी नहीं, शरई तौर पर मुकल्लफ नहीं है, तो बहरहाल घर से बाहर आना जाना जो इद्दत तो है। यानी क्या मतलब इद्दत? कि ये आगे इसका इस दौरान किसी और के साथ निकाह करना जायज नहीं है, समझ। मगर दूसरी जो सख्त पाबंदियां हैं वो इसके लिए लाजिम नहीं है। अच्छा जी, एक मसला यह है कि एक खातून किसी और इलाके में रहती थी, या ये है रहती तो वो अपने घर में है, मगर शौहर किसी दूसरे मुल्क या दूसरे इलाके में रहता था, वहां शौहर का इंतकाल हो गया और इसको पता भी नहीं है। चंद दिन गुजर गए, बाद में पता चला कि शौहर का इंतकाल हो गया। तो याद रखिए, जितने दिन गुजर चुके हैं उतने दिन इद्दत के भी गुजर चुके हैं। जिस लम्हा शौहर का इंतकाल होता है उसी लम्हा खातून पर इद्दत की पाबंदियां लागू हो जाती हैं। ये जो हमारे यहां रिवाज है ना कि भाई आओ सारे मिलकर इस खातून को इद्दत में बिठाते हैं, ये बिठाना क्या है? कोठी लगाना है? नहीं भाई, ये बिठाने का कोई चक्कर नहीं है। इद्दत क्या होती है? अपना वो घर जो शौहर का घर है, उस घर के आंगन में भी जा सकती हैं, बरामदे में भी जा सकती हैं, किचन में भी जा सकती हैं, घर में जितने कमरे हैं तमाम कमरों में बिला रोक टोक जा सकती हैं। घर जिसको घर हम कहते हैं उसके अंदर इसका आना जाना बिला रोक टोक जायज है। एक मखसूस कमरे में बंद होकर रहना, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इजाफी पाबंदी है जो शरन जायज नहीं है। एक और इजाफी पाबंदी हमारी जानिब से भी लगाई जाती है। मसलन सास हैं, अपने दामाद से पर्दा किए बैठी हैं,
سمجھ آ گئی؟ اچھا، لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اب یہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کن کن سے پردہ ہے؟ میرے بھائیو، عدت کا پردے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بولیے شاہ بھائی، عدت کا پردے کے مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. پردہ الگ ایک فرض ہے جس کو نبھانا لازم ہے اور ساری زندگی ہے. ہر غیر محرم نامحرم سے ان کا کیا ہوگا بھائی؟ پردہ ہوگا. اور جو محرم ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو محرم ہیں ان سے نہ عدت میں پردہ ہے، نہ پہلے پردہ تھا، نہ بعد میں پردہ ہوگا. یعنی یوں کہیں کہ عدت میں الگ سے کوئی پردے کی پابندی اسلام لاگو نہیں کرتا. تو اس لیے جب الگ سے کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے تو داماد سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. داماد تو بیٹا ہے، جیسے اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں، اسی طرح داماد سے بھی پردہ نہیں. اسی طرح اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، پوتوں نواسوں سے، اور وہ رشتہ دار جن سے نکاح ان کا نہیں ہو سکتا تھا ان سے عدت سے پہلے بھی پردہ نہ تھا، اب بھی نہیں، اور بعد میں بھی نہیں ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عدت میں بٹھانا مستقل مخصوص طریقے سے یہ بھی ایک اضافی معاملہ ہے جس کو ہم بدعت کہیں گے، ناجائز کہیں گے. اس لیے کہ یہ رسومات ہیں اور یہ جاہلانہ رسومات ہیں. اور پھر عدت سے اٹھانے کی بھی ایک رسم ہے، عدت میں بٹھانے کی بھی ہے. پھر عدت سے اچھا وہاں خواتین جمع ہوں گی، رشتہ دار بھی آئیں گے، اور جناب مل کر کیا ہے جی اس کو کمرے سے باہر لائیں گے. اور بعض کے ہاں تو کیا ہے جناب علی وہ نہلا دھلا کے اس کو میکے کی جانب سے ایک سوٹ دیا جاتا ہے. آج کل تو میرے خیال میں زیادہ ہی دیے جاتے ہیں، سمجھ آ گیا نہیں؟ زیادہ سوٹ دیے جاتے ہیں اس کو. یہ سوٹ دینا، باقاعدہ ایک مجمع بنانا، باقاعدہ ایک محفل کا انعقاد کرنا میرے بھائیوں ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھیے گا، ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ اسلام میں اضافہ ہے، ناجائز ہے. تو چنانچہ پھر بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب اس خاتون کو نہلا دھلا کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے شوہر کی قبر پہ لے چلتے ہیں اسے. سب سے پہلے جو انتہائی ناجائز اور گناہ کا معاملہ تھا، قبرستان میں جانا، قبر کی زیارت کے لیے خاتون کا جانا ناجائز تھا، سب سے پہلے عدت کی پابندی گزرتی اس بیچاری سے وہ گناہ کروایا جاتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. تو چنانچہ میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ خاتون کو بھلے اسی لمحہ پتہ چل جائے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی لمحہ عدت شروع ہو چکی ہے، مہینہ 2 مہینے گزر چکے بعد میں پتہ چلا، تو اب اس کو 4 مہینے 10 دن نئے سرے سے نہیں عدت گزارنی. پچھلے مہینہ 2 مہینے جتنا وقت گزر گیا وہ عدت ہو چکی، اب اگلے جتنے دن ہے وہ پابندیوں میں آ جائیں. سمجھ آ گیا؟ پتہ بھی چونکہ نہیں تھا. ایک ایسی خاتون ہے ان کے شوہر کا کہیں انتقال ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. آج کل ہوتے ہیں نا جس طریقے سے کئی لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا غائب کر دیے جاتے ہیں، سرکاری فرشتے سمجھ غائب کر دیے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر جناب ان کو مار دیا جاتا ہے. گھر والوں کو پتہ، سال گزر جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر کسی خاتون کو پتہ ہی نہ چلا شوہر کا انتقال ہو گیا کسی صورت میں اور ادھر پتہ نہیں چلا، یاد رکھی اس کی عدت گزر چکی. عدت اگر بعد میں پتہ چلے نا، 2 سال گزر گئے، پتہ چلا او میرے شوہر تو قتل ہو چکے تھے یا فوت ہو گئے تھے، اب نئے سرے سے ان کو عدت کی پابندیوں میں آنا جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اگلا مسئلہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی 4 مہینے 10 دن تو ٹھیک ہے، احتیاطاً 2-4 دن اور بھی بٹھا لو، خیر احتیاطاً. یہ کون سی احتیاط ہے بھائی؟ یہ کون سی احتیاط ہے بھائی؟ اچھا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بھائی ایسا ہے کہ ظہر کے 4 فرائض ہیں، احتیاطاً 8 پڑھ لو. کیا کر لو؟ احتیاطاً 8 پڑھ لو بھائی، 4 فرض ہو جائیں گے. اسلام میں اضافہ کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے 4 مہینے اور کوئی 11 10.5 دن بھی نہیں ہے. اور میں بتاؤں عدت کیسے ہوتی ہے؟ دن کے 12 بجے شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جب آخری دن ہوگا دن کے 12 بجے عدت پوری ہو جائے گی. 12:01 پہ بھی عدت کی پابندی رکھنا جائز نہیں ہے. اسلام تو مستقل ایک دستور ہے، اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اب سمجھیے گا یہ 4 مہینے 10 دن کیسے ہیں. 2 مسئلے ہیں میرے بھائی. اب تھک تو نہیں گئے؟ میں ختم کرتا ہوں بات جلدی. چلیں گے انشاءاللہ، زندگی ہے جب تک. کوئی آج کا دن تو نہیں ہے صرف، انشاءاللہ یہ تو اپنا انشاءاللہ ارادہ ہے. اب سب کا بھی ارادہ ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اللہ کا دین سیکھتے رہیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مت دیکھیں کون سکھا رہا ہے اللہ کے دین کی بات، کہنے والی زبان کیسی ہے. نہیں بھائی، اللہ کے دین کی بات ہے، انشاءاللہ ہم لیں گے اللہ کے دین کی بات.
समझिए जी, दो तरीके हैं 4 महीने 10 दिन काउंट करने के। दो तरीके हैं। एक खातून के शौहर का इंतकाल हुआ चांद की पहली तारीख को। कब? याद रखिए, चांद की पहली तारीख को। तो अब ये इद्दत गुजारेगी चांद के एतबार से 4 महीने 10 दिन। किसके एतबार से? अल्लाह के लिए समझना भाई, बहुत आसान करके समझाना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर यकम रमजान को एक साहब का इंतकाल हो गया, तो रमजान 30 का भी होता है और उमूमन चांद चढ़ता नहीं, हम चढ़ा भी देते हैं। हाँ जी, यहां ना हो तो पेशावर में तो चढ़ा ही दिया जाता है, जल्दी जल्दी ईद हो जाए। सही है। बाज महीने 29 के होंगे, बाज 30 के होंगे, बाज 29 के होंगे, बाज 30 के होंगे। याद रखना, अगर किसी भी इस्लामी एतबार से महीने की पहली तारीख को किसी औरत के शौहर का इंतकाल हुआ है तो वो चांद के एतबार से इद्दत गुजारेगी 4 महीने। जो 29 के होंगे वो भी महीना पूरा, जो 30 के होंगे वो भी महीना पूरा। जब इस तरीके से 4 चांद पूरे हो जाएंगे, यूं आसान करें, 4 चांद पूरे हो जाएंगे तो आगे गिनकर 10 दिन और कर लेगी। अब इसमें जो 29 के हुए थे उसमें क्या है, 2-3 दिन कम भी हो सकते हैं। इद्दत में 2-3 दिन 29। लेकिन एक ऐसी खातून है कि उनके शौहर का इंतकाल चांद की पहली तारीख को नहीं, जैसे 2, 4, 10, 20 बीच में किसी दिन में हुआ। अब ये चांद के एतबार से इद्दत नहीं गुजारेंगी, अब ये गिन कर 30 का महीना पूरा करेंगी। क्या करेंगी? कौन? जिनके शौहर का चांद के दरमियान में कहीं पर इंतकाल हो गया, पहली के बाद कहीं भी 30 तक कहीं भी इंतकाल हो गया, तो अब ये चांद के एतबार से इद्दत नहीं गुजारेंगी, ये गिनती के कितने दिन गुजारेंगी? 130 दिन। कितने? 120 तो हो गए 4 महीने, और आगे 10 दिन मिला के कितने बने? 130 दिन ये गिनकर इद्दत गुजारेंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रह गया मामला मेरे भाई के इद्दत के दौरान औरत का खर्चा कौन उठाएगा? तलाक की इद्दत का मसला और है, और जिसके शौहर का इंतकाल हुआ उसका मसला और है। तलाक के दौरान तो क्या है कि जो शौहर हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये अलग मसला है, उसमें तफसीलात है, मैं उस तरफ नहीं जाता, वो मसाइल शायद आगे आए भी। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो है उस शौहर की जो फौत हो गए। अब ये औरत क्या है, बेवा हो गई और इन्हें 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारनी है। इनका खर्चा कौन उठाए? न इसका खर्चा देवरों पर लाजिम है, न सास पे है, न ससुर पे है, न किसी और पर है, बल्कि इसको शौहर की विरासत में से जो हिस्सा मिल चुका है ये अपना खर्चा खुद उठाएगी। अपना खर्चा यानी ससुराल पर लाजिम नहीं है, लेकिन अगर ससुराल वाले खर्चा उठाते हैं तो उन्हें सवाब होगा, जायज है, सवाब होगा। लेकिन अगर वो नहीं उठाना चाहते तो गुनाहगार, और ना ही जाकर ये कोर्ट में दरखास्त दायर कर सकती हैं कि जी मेरे जो ससुराल वाले हैं तो वो मेरा खर्चा नहीं उठाते। इद्दत के दौरान शरअन औरत का खर्चा किसी पर लाजिम नहीं है। आगे चलिए जी। सोग क्या है? सोग शौहर की जुदाई का गम। शौहर की जुदाई का गम। आम जो लोग हैं, बीवी के अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे मरहूम की मां है, बाप है, बहन, भाई, बेटे, बेटियां, चचा, ताया, मामू, खाला, दादा, दादी, कोई भी हैं, इन सब पर अजीज व अकारिब 3 दिन तक सोग लाजिम है। कितना जी? अब सोग का मतलब है गम की कैफियत अपने ऊपर तारी किए रखना और बैठे रहना। गम की दुनिया के कामों में ना जाए, गम की कैफियत तारी किए रखना। समझ आ गई ना जी? आज हमारे यहां तो क्या होता है, दूसरे दिन ही तीजा कर दो, काम चल जाए। तीजा दूसरे दिन, इन्ना लिल्लाहि। और भाई इस्लाम में न दूजे का तस्वुर है, न तीजे का तस्वुर है, न साते का, न 10वें का, न 40वें का, न 20वें, किसी का भी तस्वुर नहीं है। 3 दिन तक ताजियत इस्लाम ने रखी है, और 3 दिन तक ही इस्लाम ने क्या रखा है? सोग रखा। समझ आ गई? या 3 दिन तक सोग है। रह गई बीवी यानी बेवा, इस पर 4 महीने और 10 दिन तक सोग है। 4 महीने 10 दिन तक। हमारे यहां एक गलत रिवाज है, घर में शादी तैयार थी तो अब क्या है जी, जब तक 40वां नहीं हो जाएगा तब तक शादी नहीं करेंगे। ये 40वें की पाबंदी हम कहां से निकाल लाए भाई? पाबंदी कितने दिन थी? 3 दिन।
चौथे दिन आप आराम से शादी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये 40वें दिन की जो पाबंदी हमने लगा रखी, हमने इस्लाम में इजाफा कर रखा है, और ये इसी का नाम तो बिदअत होता है, नाजायज है, गुनाह का मामला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस मौका पर क्या है, शरई अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला मसाइल को सीख सीख कर हमें आगे चलना है। रह गया मामला इसके बेवा के निकाह का। अगले अल्फाज में मसाइल तो और भी हैं, लेकिन मैंने बिल इख्तिसार चंद मसाइल अर्ज कर दिए हैं। आगे मसला आया, फैदा बलगना अजलहुन्ना, जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी कर चुकें, 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी हो जाए, फला जुनाहा अलैकुम फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, ऐ इन औरतों के वारसो, औलिया, इनके सरपरस्तों, फरमाया तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर ये खवातीन अपने मामले में फैसला करना चाहें, यानी दूसरी शादी का, दूसरे निकाह का। अगर बेवा औरत आगे निकाह करना चाहती हैं तो कुरान मजीद ने इसके वरासा, इसके औलिया, इसके सरपरस्तों को सख्ती से नोटिस दिया है। फरमाया कि तुम इस बेवा को दूसरी शादी से रोक सकते नहीं हो, इसको रोकना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। हाँ, कुफार के यहां तो खैर है ही है, लेकिन हम मुसलमानों के अंदर भी अल्लाह मुआफ फरमाए ये गुनाह इस वक्त भरपूर मौजूद है। हम समझते हैं अगर जवानी में भी एक जो है ना, एक बच्ची बेवा हो गई है जवानी की उम्र में भी, तो अब उसका दूसरा निकाह मायूब समझा जाता है। नहीं जी, बच्चा है ना, बच्चे पे बैठी रहेगी, बच्चा है ना, औलाद है, औलाद न होती तो शादी कर। क्यों भाई, शादी सिर्फ औलाद के लिए की जाती है क्या? मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी का जो रिश्ता बनाया है, मियां बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। क्या है भाई? लिबास हैं। जो मियां बीवी एक दूसरे को हाले दिल दे ले सकते हैं, वो औलाद को कोई भी हाले दिल ले दे सकता नहीं है। जो खिदमत बीवी अपने शौहर की कर सकती है, वो औलादें नहीं कर सकती हैं। समझ आइए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निस्बत रखी है। सूरह नूर के अंदर मुस्तकिल इस बात का हुक्म आया, अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, फरमाया तुम अगर कोई खवातीन बेवा हो जाएं या बाज मर्दों की बीवियां फौत हो जाएं, तो फरमाया तुम्हें चाहिए कि फौरन उनके निकाह कर दो। फौरन से मुराद है औरतें हैं, इद्दत जब उनकी मुकम्मल हो, पाबंदी खत्म हो, तो निकाह कर दिया जाए। ऐसे ही मर्दों का मामला है कि वो निकाह करें, लेकिन औरत इद्दत के बाद निकाह कर सकती है, मर्द के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, इस मामले में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, शरीय एतबार से पाबंदी लगाना। हजरत थानवी रहमुल्लाह ने अजीब बात लिखी है, फरमाया किसी खातून को रोकना कि तुम्हें शादी क्या जरूरत है, यह हराम तो जरूर है, कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, हराम तो जरूर है, और दूसरे निकाह को मायूब समझना कुफ्र भी है। दूसरे निकाह को मायूब समझना, बोलो, कुफर भी है। समझ आ गई? क्यों? अल्लाह ताला एक चीज को मुस्ताहसन, पसंदीदा करार दे रहे हो और हम कहें नहीं जी नहीं, ये तो गंदा काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नाजायज है। तो अल्लाह ताला के हलाल को हराम किया कि नहीं किया? अल्लाह ताला के हुक्म को बदला कि न बदला? तो मेरे भाइयों, इसलिए पाबंदी अल्लाह की तरफ से ये नहीं है, तो हमें भी पाबंदी नहीं लगाना चाहिए इस मामले में। फैदा बलगना अजलहुन्ना, पर जब वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को, मुद्दत को, फला जुनाहा अलैकुम, तो बस तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, उस मामले में कि वो जो करना चाहें अपनी जात के मामले में दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर के मुताबिक क्या? इसका मतलब क्या है? शरी तकाजों को पूरा करके बाकायदा बाज़ाब्ता निकाह करना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी कर रही हैं, गुनाह के रास्ते पे चल रही हैं, तो भी उनको वो रास्ता ना रोकें, नहीं। नंबर 2, अगर ये औरत गैर कुफ़्व में निकाह करे, गैर कुफ़्व क्या होता है? अरबी में कुफ़्व लफ्ज है, कुफ़्व इसका माने है बराबरी। कुरान में आया लम यकुल्लहु कुफ़ुवन अहद, ये कुफ़्व इसका माने होता है बराबरी। औरत अगर अपनी मर्जी से निकाह चाहे तो करे, तो उसको बराबरी में निकाह करना जरूरी है। अगर अपने से कमतर के साथ कर दिया, कौमी एतबार से कमतर है, दीन के एतबार से कमतर है, शक्ल सूरत और हुस्न जमाल के एतबार से कमतर है, अपने से कमतर के साथ अपनी मर्जी से निकाह किया, तो उसके जो वली और सरपरस्त हैं ये इस निकाह को कल अदम करार दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने बराबरी का लिहाज रखा है तो फिर वरासा को इसमें किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं है। ये औरत फरमाया अगर कुफू के अंदर कहीं शादी करना चाहती है तो तुम उसकी रुकावट मत बनो। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से
خوب خبردار ہیں، اس لیے جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی مت کرنا، نہ تو ان عدت کے معاملات میں اور نہ ہی نکاح ثانی کے معاملات میں۔ یہ آئے شرعی احکامات ان خواتین کے متعلق اس آیت میں مسائل تھے جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ اگلی آیت میں مسئلہ آنے والا ہے کہ اب جن کا انتقال ہو جائے ان کے گھر کب رشتہ بھیجنا جائز ہے اور کب تک ناجائز۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلی بات پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہا سنا اپنی رحمت سے قبول و منظور۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔